رمضان الكريم رمضان الكريم رمضان الكريم رمضان الكريم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روزانہ ہی الحمدللہ اعتکاف کی رونقیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں۔ ہم حیدرآباد گئے تھے تو حیدرآباد سے ہمارے زوار بھائی نے آپ کو معتکفین کے تاثرات بھی سنائے، رکن شورا سے گفتگو کروائی۔ تو الحمدللہ یہ پروگرام جو آپ مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ علم دین کو عام کرنا، اور بالخصوص جو اللہ کے مہمان، راہ خدا کے مسافر جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ روز کی بنیادوں پر ان کا شیڈول چل رہا ہے، ان کے آنے کا مقاصد کیا ہے، وہ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو نئی اپڈیٹ اس پروگرام میں دی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چائی فیضان مدینہ میں، اپنے ہو یا بیگانے یوں ملتے ہیں دیوانے، جیسے ہو سگے بھائی فیضان مدینہ میں۔ تو الحمدللہ برکتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے، رحمتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے، اور ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کیا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں؟ اس کا تعارف کروائیے۔ اس وقت جو میرے ہاتھ میں ہے وہ نیک بننے کا نسخہ ہے۔ ہاں بالکل، الحمدللہ میرے ہاتھ میں اس وقت نیک اعمال کا رسالہ ہے، اور یہ وہ رسالہ ہے کہ جس کے بارے میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ کوئی صحیح معنوں میں اس کے مطابق اپنے دن بھر کا شیڈیول بنا لے، وہ اللہ پاک کا نیک بندہ بن جائے گا۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں مجھے اس نیک اعمال کے رسالے سے اتنا پیار ہے کہ اس کی حد بیان کرنا دشوار ہے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جو گھرانے نیک اعمال کے مطابق چلتے ہیں وہ گھرانے امن کے گہوارے بن جاتے ہیں، راحت کے گہوارے بن جاتے ہیں، سنتوں کے گہوارے بن جاتے ہیں۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال ہیں، گھر کی اسلامی بہنیں ہیں ان کے لیے بھی نیک اعمال دیے ہیں، بچے اور بچیوں کے لیے بھی الحمدللہ امیر علیہ سنت نے نیک اعمال عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ یہ وہ نیک اعمال ہیں کہ جس کے مطابق بندہ بآسانی اپنا وقت، اپنی دن، اپنی رات، اپنا کاروبار کرتے ہوئے، دن گزارتے ہوئے نیکیوں میں گزار سکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ وہ نیک اعمال ہے۔ اچھا، اب اس کو میں یوں کہوں گا یہ آئینہ ہے۔ آئینہ آپ کا فیس دکھاتا ہے نا، آئینہ آپ کا چہرہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے کہ یہ آپ کا چہرہ بھی دکھائے گا، یہ اندر کا بھی بتائے گا کہ آپ اندر سے کیسے ہیں۔ ظاہر تو آپ نے اچھا کر لیا، باطن کیسا ہے، اندر تو گندگی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ وہ نیک اعمال کا رسالہ ہے جو امیر علیہ سنت نے ہم سب کو عطا فرمایا، تمام مسلمانوں کے لیے الحمدللہ یہ نیک اعمال کا رسالہ ہے۔ اس کا جائزہ بھی کرنا ہوتا ہے، اس سے جائزہ لینا ہوتا ہے۔ اس میں نیک اعمال ہے کہ آپ نے اچھی نیت کی۔ اب بندہ کہ اچھی نیت یہ کیسے ہوگی؟ بھائی چائے پی رہے ہیں نا، آپ اچھی نیت کر لیں، یہ چائے بسم اللہ شریف پڑھ کر پیوں گا۔ اس میں تلاوت قرآن کا بھی نیک عمل ہے۔ کیا آپ نے تلاوت قرآن کی کم از کم 3 آیت ہی پڑھ لی؟ اچھا نہیں پڑھنا آتا، پڑھنے کی کوشش کی، سیکھنے کی کوشش کی۔ اگر نہیں آ رہا اس دوران تلاوت سنی۔ الحمدللہ عبادت، ریاضت، تلاوت اور زندگی کیسے گزارنی ہے، الحمدللہ یہ سب امیر علیہ سنت نے ان نیک اعمال کے رسالے کے مطابق الحمدللہ یہ لکھ کر ہمیں دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کے بغیر آدمی ادھورا ہے۔ نیک اعمال کا رسالہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق آپ جو ہے وہ پوری اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ اور ماہ رمضان تو ویسے امیر اہل سنت فرما رہے ہیں کہ ماہ رمضان ماہ نیک اعمال، ماہ رمضان ماہ نیک اعمال، تو اپنی زندگی جو ہے وہ نیکیوں کے مطابق گزارنی ہے۔ مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے، مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ تو یہ رسالہ جو ہے اس میں سوالات دیے ہوئے ہیں کہ روز کے اتنے سوالات ہیں، ہفتہ وار اتنے کوسچن ہیں، اور ماہانہ اتنے سوالات ہیں، سالانہ اتنے سوالات ہیں۔ اگر آپ نے اب تک یہ رسالہ حاصل نہیں کیا تو اپلیکیشن بھی اس کی آ چکی ہے، اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جی آپ کے ہاتھ میں ایک اور کارڈ ہے، ایک کارڈ تو آپ نے دکھایا، ایک اور کارڈ ہے وائٹ ہے، یہ اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ وہ کارڈ ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ماہ رمضان کا یوں کہیں کہ تحفہ دے دیا ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان گزارنے کیسے ہیں؟ ماہ رمضان جنتی اعمال کے مطابق گزارنے۔ ان میں وہ اعمال لکھے ہیں کہ اگر جس کو جنت میں جانا ہے،
जो जन्नत में गए और जिन आमाल को करते करते जिन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, अल्लाह पाक के करम से जन्नत पाई, ये वो जन्नती आमाल हैं जो इनमें लिखे हुए हैं। माह रमज़ान तो हमें मिल गया, अल्लाह का शुक्र है मिल गया, काश माह रमज़ान हम जन्नती आमाल के मुताबिक गुजार सके। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है इसके अंदर, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो वाकई हमें लगेगा कि माह रमज़ान ही नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, ज़िंदगी नेक आमाल और जन्नती आमाल के मुताबिक गुजारनी चाहिए। तो यूँ दावत इस्लामी के दीनी माहौल से जब वाबस्ता रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये सब बरकतें मिलती रहेंगी। मदनी चैनल के नाज़रीन नियत कर लेना, अपनी ज़िंदगी नेक आमाल के मुताबिक गुजारेंगे। हमें वो आमाल करना है जिससे रब राज़ी हो, उन कामों से बचना है जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है। अल्लाह पाक हम सब से सुन्नतों की खिदमत भी ले, दावत इस्लामी के दीनी माहौल में इस्तिकामत भी अता फरमाए। दावत इस्लामी जिंदाबाद, नेक आमाल पर अमल जारी रहेगा। रमजानुल करीम, रमजानुल करीम, रमजानुल करीम, रमजानुल करीम। आइए हम फैज़ान मदीना में जो आशिकान रसूल की खैरख्वाही खिदमत के लिए एक पूरी टीम है, यहाँ पर एक क्लिनिक कायम है, हमारे डॉक्टर साहब हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए या कोई आजमाइश हो जाए तो उनकी रहनुमाई डॉक्टर साहब करते हैं और ये पूरी खिदमत की जा रही है। क्लिनिक पूरे साहिल ही कायम है, तो रोज़े के हवाले से बिलखुसूस जो मरीज़ हैं उनके हवाले से हम डॉक्टर कामरान से रहनुमाई लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, चैनल पे भी नाजरीन हमें सुन रहे हैं और एतकाफ़ में भी आप रहनुमाई कर रहे हैं हमारी, लेकिन एक तादाद है कि 2-4 रोज़े तक तो सही रहा, लेकिन ये 5वें रोज़े के बाद से जो ना वो शिद्दत की खांसी और नज़ला और बुखार ये मामला शुरू हो गए। तो अब ये परहेज़ क्या करें? एतकाफ़ वाले भी क्या परहेज़ करें और जो मदनी चैनल के नाजरीन, हमें क्या परहेज़ करना चाहिए वो बताएं। देखिए, अब मौसम के हिसाब से हमारे यहाँ पे जो है उमूमी तौर पर रात का काम होता है और रात के टाइम पे मौसम ज़रा खुनकी आ जाती है, हवा में नमी आ जाती है और उसकी वजह से थोड़ा सा मौसम के टेम्परेचर में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो जिसकी वजह से, क्योंकि इस्लामी हमारे यहाँ बाहर से आए हुए होते हैं, उनका जो दूसरे शहरों से आए हुए होते हैं, उनका जो जिस्म होता है, बॉडी होती है, वो उस टेम्परेचर का आदी नहीं होती है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। खाने पीने के मामलात के हवाले से थोड़ा सा एहतियात इनको ज़रूर करनी चाहिए कि बिलखुसूस जो ठंडी चीज़ें हैं, स्पेशली कुल्फ़ी वगैरह है या जो शरबत वगैरह होते हैं, उनसे थोड़ा सा अवॉइड करें। ठंडा पानी, जो ख़ास तौर पे ठंडा पानी होता है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, ज़ुकाम वगैरह की कैफियत पैदा कर देता है, गला ख़राब कर देता है और फिर यही चीज़ आगे बढ़ के जो है ना फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अल्टीमेटली नुकसान इनका होता है कि जिस मकसद के लिए इस्लामी भाई यहाँ पे आए होते हैं, 30 दिन यहाँ पे आते हैं, सीखने सिखाने के अमल के लिए आते हैं, लेकिन वो अक्सर टाइम हमारे पास लगा देते हैं, तो फिर वो तमाम के तमाम मामलात उनके डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, ये इरशाद फरमाए, ये तो आपने एतकाफ़ वालों के बारे में रहनुमाई की है, लेकिन जो चैनल पे, मदनी चैनल पे भी नाजरीन हमें सुन रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं, तो हमारी तो इफ्तारी कंप्लीट ही नहीं होती अगर समोसे ना हो, पकोड़े ना हो, चाट ना हो और अगर ठंडा शरबत ही ना हो, तो वो इफ्तारी कैसे होगी? फिर गले की भी प्रॉब्लम है, साथ में बुखार की भी कैफियत है। तो ये दस्तरखान पे जब आ जाती हैं चीज़ें, तो उस वक्त जो है वो, अगर इनमें से कोई चीज़ भी कम हो जाती है तो कई घरों में तो नाराज़गियाँ हो जाती हैं कि तुमने शरबत क्यों नहीं बनाया या चटनी क्यों नहीं है इसके साथ। तो इस पे क्या रहनुमाई करेंगे आप? देखें, इसमें ज़रूरी तो नहीं है कि इसके बगैर रोज़ा नहीं खुल सकता आदमी, का रोज़ा तो उसके बगैर भी खुल जाता है, लेकिन ये एक ट्रेडिशन चला हुआ है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कि इसके बगैर हम काम नहीं करते हैं। अजीब सा लगता है, इफ्तार करते हुए अजीब सा लगता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों से बचें, क्योंकि अगर आप देखें इन चीज़ों से बचेंगे तो डॉक्टर से भी महफूज रहेंगे, वरना फिर डॉक्टर्स की क्लिनिकें ज़्यादा आबाद हो जाएंगी और आप लोग जो है बीमार होते जाएंगे और रोज़े में मसाइल के पैदा हो जाएंगे। आप इस किस्म की चीज़ें खाएँगे, गला ख़राब होगा और पेट भारी हो जाएगा, गैस के मसाइल शुरू हो जाते हैं, 100 मसले खड़े हो जाते हैं। फिर आपने खाना भी खाना है, इफ्तारी भी टाइट करनी है, खाना भी खाना है आपने, और फिर खाने के बाद तरावी के बाद फिर सहरी भी करनी है आपने। तो ओवरऑल सिर्फ इस चीज़ को जहन में रखें कि आपका जो निज़ाम हज़म है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है रमज़ान के दौरान, क्योंकि आप जब खाना नाश्ता कर रहे होते हैं वो आप सुबह 4 बजे कर रहे होते हैं, जबकि आम रूटीन में नाश्ता आप 9 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे कर लेते हैं, और दोपहर का खाना तो स्विप हो जाता है। रात का खाना
आप उम्मीद तौर पे 7 साढ़े 7 बजे से पेट भरना शुरू कर देते हैं जो 11 बजे तक चलता रहता है, तो निज़ाम हज़म उसमें यकीनन प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है, मैदे में तकलीफ शुरू हो जाती है, बाज़ लोगों का पेट ख़राब हो जाता है, मोशन हो जाते हैं। तो इस पे थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, डाइट लें, खाना लें, जिस्म के लिए ज़रूरी है, ताकत के लिए ज़रूरी है, इबादत में फ़ायदा होता है उस चीज़ का, लेकिन ज़रूरी से ज़्यादा ना लें। जो ख़राब चीज़ आपको पता है ख़राब कर सकती है सेहत, उससे अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे ठंडा पानी है, तली हुई चीज़ें हैं, जूसेस वगैरह हैं, स्पेशली सैक्रीन वाले जूसेस जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। रमज़ान में देखा है मैंने कि वो सैशे वगैरह मिलते हैं, छोटे छोटे सैशे होते हैं जिनमें सैक्रीन मिला हुआ होता है, उससे एक पूरी की पूरी बोतल तैयार हो जाती है शरबत की, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, गला ख़राब करने में जो है ना वो समझ लें कारगर साबित होता है। कोल्ड ड्रिंक भी लोग पीते हैं इसमें, ये इसके बारे में भी बता दें। जी बिल्कुल, कोल्ड ड्रिंक के इस तरह वो ठंडे मशरूब में शामिल हो जाती है ना। कोल्ड ड्रिंक के अंदर देखें, एक चीज़ आपको बताएं, अगर आप थोड़ा सा उसको कोल्ड ड्रिंक को देखें, नीचे उसके जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं उसके अंदर एक कार्बोनिक एसिड वगैरह, कार्बोनेटेड एसिड करके लिखा हुआ होता है। अब एसिड को अगर आप ट्रेस करें तो एसिड के माने क्या होते हैं? एसिड के माने तेज़ाब होते हैं। अब वो भले उसमें हल्की मिकदार में ही क्यों ना हो, लेकिन बहरहाल एसिड तो होता है उसके अंदर, वो मैदे को जाके डेफिनेटली नुकसान तो पहुँचाता ही है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचें ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। देखिए, आपकी सेहत अगर ठीक रहेगी ना तो आप अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर आप ही की सेहत ख़राब हो जाएगी तो आप इबादत के लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और फिर जो काम काज हैं उसमें भी बहुत हर्ज हो जाएगा आपका। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, एतकाफ़ वालों के दरमियान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने हमारी रहनुमाई की और इसमें हमें ये भी पता चला कि सेहत सही है तो दीन दुनिया दोनों का काम हम कर सकते हैं। और याद रखें कि सुन्नत तो जो है वो खजूर और पानी से इफ्तार करना सुन्नत है। अगर सुन्नत पर अमल हो जाएगा तो बहुत सारे मामलात में हम सेट हो जाएंगे और सेहत हमारी अगर सही होगी तो तरावी और दीगर इबादत में भी हम चाको चौबंद रहेंगे। मज़ीद जो है वो रहनुमाई हम डॉक्टर साहब से मज़ीद लेते रहेंगे। रमजानुल करीम रमजानुल करीम रमजानुल करीम रमजानुल करीम। अब बलोचों का काफ़िला भी हमें यहाँ पे मिला है और बलोचिस्तान में भी दावत इस्लामी का मुख्तलिफ़ शहरों में मराकिज़ कायम है। आप चले जाएँ कोयटा में, अगर वो उसका कैपिटल है, खुशदार है, मंगूचर है, दालबदीन है, खारान है, डेरा लयार की तरफ फैज़ान मदीना सिब्बी में है, कल्लात में है, खुशदार में है, हब चौकी में है। और ये जो आशिकान रसूल हैं ये पंजगूर से आए हैं। गवादर में भी फैज़ान मदीना कायम है। जी, क्या नाम है पूरा आपका भाई? मेरा नाम है ज़ुहैब और मेरा बलोचिस्तान कहाँ से? बलूचिस्तान में ज़िल और ताल्लुक़ रखता हूँ पंजगूर से। पंजगूर। आप कहाँ से? क्या नाम? मैं खारान से, मेरा नाम यागी खान है। अच्छा, खारान से है। जी हाँ, आप कहाँ से आए? जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान और मैं बलूचिस्तान के ज़िला पंजगूर से ताल्लुक़ रखता हूँ। पंजगूर से ताल्लुक़ है। आप कहाँ से? मैं भी खारान से। खारान से आए। खारान में है दावत इस्लामी? जी जी, फैज़ान मदीना। देखिए, खारान है, वहाँ भी फैज़ान मदीना कायम है। क्या कहेंगे आप लोग यहाँ क्यों आ गए? बलूचिस्तान के पहाड़ों को छोड़ के आप यहाँ आ गए? खैरियत? नमाज सीखने और वज़ू की फ़र्ज़ है, गस्ल की फ़र्ज़ है, दीन की बातें दी, सीखने आए। दीन की बातें सीखनी है। इंशाल्लाह आगे का क्या इरादा है आपका? इरादा है इंशाल्लाह कि दाढ़ी वाजे की सुन्नत रखें इंशाल्लाह। दाढ़ी? दाढ़ी जियान, अच्छा, दाढ़ी रखी। दाढ़ी 5 टाइम की नमाज, अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। सही, माशाल्लाह। आपका क्या इरादा है? जी, इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह अब यहाँ से जाएंगे, जब हमारा 1 माह का इत्काफ़ पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह यहाँ से वो अपने इलाके में जाएंगे। बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो अगर सुने आपको, आप उनको क्या बोलेंगे फैज़ान मदीना मरकज़ के लिए? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना यहाँ जो मरकज़ है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए जो नमाज का अमली तरीका है जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कल मतलब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो गस्ल का मतलब जो और कफन और दफन का तरीका बताया गया, माशाल्लाह बहुत ही बेहतर लगा, बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह। मैं तमाम ही बलूचिस्तान के तमाम जो आशिकान रसूल हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आइए फैज़ान मदीना में यहाँ पे आ जाएँ, 1 माह का इत्काफ़ करें और माशाल्लाह सब कुछ जो सीखने को माशाल्लाह मिल रहा है। माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे, माशाल्लाह इल्म दीन जो है ना, इल्म दीन की बहार है माशाल्लाह, हर वक्त माशाल्लाह सीखने को मिल रहे हैं। बलूचिस्तान में से आया हूँ, ताल्लुक़ रखता हूँ पंजगूर से। यहाँ मैं कराची फैज़ान मदीना आया हूँ, यहाँ पहली बार मैं आया हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी इंतज़ामी हैं और हमने नमाज सीख ली है इधर और सीखा है और वज़ू सीख लिया है और गस्ल के फ़र्ज़ें सीख लिया है और यहाँ पर बहुत अच्छी इंतज़ाम है और यहाँ पर
गोश्त हम लोगों को देते हैं और बिरयानी देते हैं हम लोगों को। बहुत अच्छी जगह है। वो हमारे अमीर है और हमारे अमीर का नाम है मोहम्मद इमरान जलाली। वो हम लोग को सिखा रहे। वो यहाँ जी हाँ, कुरान मजीद हम लोग खुद पढ़ते हैं और जिक्र करते हैं यहाँ पर फैज़ान मदीने में। यहाँ पर बहुत अच्छी इंतज़ामी है। कपड़े पाक करने का तरीका सीखा है, नमाज के फ़राइज़ वगैरह सुन्नतें भी सीखे हैं माशाल्लाह, बहुत कुछ सीखा है। नौजवानों को कोई मैसेज दें आप? मेरा मैसेज ये है कि वो भी यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नमाज का तरीका, वज़ू का तरीका। चांद रात को काफले में जाना है या कोर्स करना है, क्या करना है? दोनों में से एक काम है, या कोर्स या काफला। 63 दिन का कोर्स। तो अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हर इस्लामी भाई जो चाहता है ना कि मैं मुबल्लिग बन जाऊं, मुझे बयान करना आ जाए, मुझे दर्स आ जाए, मुझे दीन का काम का जज्बा मिल जाए और मेरी इनफरादी कोशिश अच्छी हो जाए, मैं एक बाअमल मुसलमान बन जाऊं, तो वो 63 दिन का कोर्स कर लें। और चांद रात से ही अल्हम्दुलिल्लाह 63 दिन का कोर्स होगा। तो ये बलूचिस्तान से जो हमें काफ़िला मिला है बलोचों का, पंजगूर से आया है, इन सब ने अपने आप को पेश कर दिया कि चांद रात को ये घर नहीं जा रहे, बल्कि चांद रात से ही 63 दिन का तरबियती कोर्स करेंगे। रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आज आपको लिए चलते हैं वलियों के शहर। ये वो शहर है जिसको मदीनतुल औलिया मुल्तान कहा गया है। मुल्तान वो शहर जो कि आशिकों का शहर है और दावत इस्लामी का वहाँ बैनुल अक़वामी सुन्नत व बरा इज्तिमा भी होता रहा है। मुल्तान में है अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना अंसारी चौक, वहाँ पर भी 1 महीने का एतकाफ़ जारी व सारी है। आइए चलते हैं मुल्तान फैज़ान मदीना और वहाँ पहुँच के हम देखते हैं एतकाफ़ में क्या हो रहा है, किस अंदाज से जदवल चल रहा है, क्या तासुरात हैं और कितने डिपार्टमेंट बने हुए हैं, कितनी मजालिसें बनी हुई हैं और इबादत इलाही का क्या शेड्यूल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत पाकिस्तान भर में 29 मकामात पर 1 माह के एहतिकाफ़ का सिलसिला जारी व सारी है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना मुल्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह का एहतिकाफ़ का सिलसिला जारी व सारी है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कसीर आशिकान रसूल तशरीफ़ लाए हुए हैं। आप ये देखेंगे कि माशाअल्लाह ये वो इस्लामी भाई हैं जो 1 माह के एहतिकाफ़ के लिए यहाँ पर एडमिशन अपना करवा रहे हैं। इन्होंने फॉर्म फिल करवाना है, फॉर्म जमा करवाना है, जिस पर इनकी तस्दीक का सिलसिला होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इनके फॉर्म की तस्दीक और उसके बाद इनके फॉर्म जमा हो जाएंगे। फिर यहाँ से इनको एक टोकन मिलेगा, जो टोकन लेकर वहाँ हमारे जदवल निगरान इस्लामी के पास पहुँचेंगे और इनके हल्के बनाए जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह डबल 12 घंटे का पूरा एक शेड्यूल है कि उसमें कब क्या सीखना है, क्या शेड्यूल होता है। तो मैं इसमें अर्ज़ करता जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सहरी से पहले रोज़ाना सलातुल लैल और तहज्जुद का सिलसिला होता है और फिर मुनाजात और रिक्कत अंगेज़ दुआ का सिलसिला होता है। उसके बाद सहरी का सिलसिला और फिर बाद फजर इशराक़ व चाश तक शेड्यूल जारी व सारी रहता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना एक दुआ याद करवाई जाती है, रोज़ाना बयान का सिलसिला होता है। फिर इशराक़ व चाश्त बाद जमाअत अदा करने की सआदत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर वक्फ़ा आराम का सिलसिला होता है। 11:40 पर जगाया जाता है और 12 बजे तिलावत और नाज से शेड्यूल का आगाज़ हो जाता है। और यूँ कारी साहबान अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त कुरान पाक पढ़ना सिखाते हैं कि दुरुस्त पढ़ना कैसे है, हुरूफ की अदायगी क्या है, इनको किस अंदाज से पढ़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मदनी कायदा इस 1 माह के एहतिकाफ़ में पढ़ाया जाएगा। और फिर वो अज़कार जो हम नमाज में पढ़ते हैं, जैसे सूरह फातिहा है, सूरह इखलास है, रुकू और सुजूद की तस्बीहात हैं, तशाहुद है, दुआए कुनूत हैं, जनाजा की दुआएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज़ाना इनमें से कुछ न कुछ इसकी मश्क करवाई जाती है। और फिर बाद ज़ुहर दर्स का सिलसिला होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो दीनी काम भी है और ये आशिकान रसूल दर्स में शिरकत फरमाते हैं, दर्स देते हैं। उसके बाद रोज़ाना नमाज के अहकाम से वुज़ू, गुस्ल, तयम्मुम, नमाज की शराइत, फ़राइज़, वाजिबात और नमाज दुरुस्त पढ़नी कैसे है, तकबीर तहरीमा के लिए हाथ किस तरह उठाने हैं, क़याम कैसे करना है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके प्रैक्टिकल का सिलसिला भी होता है।
अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना प्यारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें भी सिखाई जाती हैं और नेक अमाल का जायज़ा भी करवाया जाता है और इसी तरह सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन तरबियत का सिलसिला जारी व सारी रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों इस्लामी भी यहाँ इतिकाफ़ कर रहे हैं, तो इनके इफ्तार खाना सहरी का सिलसिला भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ होता है। आपको ले चलते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों इस्लामी भाइयों के लिए इफ्तार का यहाँ सिलसिला किया गया है। आप देख रहे हैं वसी निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर इफ्तारी का सिलसिला होता है और खाना का भी सिलसिला होता है। ये पूरा निज़ाम करने के लिए इंतज़ामात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक मजलिस है। ये अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत करते हैं, इनको खाना पेश करते हैं, इफ्तारी पेश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इफ्तार का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि आशिकान रसूल को अच्छे अंदाज से इफ्तार की तरकीब करवाई जाए। तो माशाअल्लाह जो आपने इतने इंतज़ामात देखे अल्हम्दुलिल्लाह, इसका पूरा एक सेटअप है, हमारी मजलिस है और इस मजलिस के निगरान हमारे कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी। आइए इनसे मिलते हैं। कर साहब माशाअल्लाह इतना वसी इंतज़ाम अभी हम देख रहे हैं, दस्तरखान पर भी देख रहे हैं माशाअल्लाह बेहतरीन इफ्तार का सिलसिला किया जा रहा है। सैकड़ों यहाँ इस्लामी भाई हैं, तो ये सारा निज़ाम आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? कितनी मजालिस बनाई हुई हैं, क्या तरीक़ाकार है? माशाअल्लाह आप इफ्तार का वक्त भी आप वो निज़ाम भी देखते हैं, सहरी के वक्त भी आप पूरा निज़ाम इसका मैनेज किया हुआ है, खाना बनाना लाना करना, इसका क्या निज़ाम है? इस पर आप कुछ इरशाद फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे यहाँ पर एतकाफ़ के लिए मुख्तलिफ़ मजालिस बनी हुई हैं जो इस सारे काम को अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर रहे हैं बड़े अच्छे अंदाज में। और इसी तरह गल्ला मंडी के लिए हमारे अलग से इस्लामी भाई हैं जो परचेजिंग करके लेके आ रहे हैं, मिसालें हम अपने यहाँ पिसवा रहे हैं और बड़े अच्छे अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों को खैर खाई की जा रही है। इसी तरह सब्ज़ी मंडी के लिए अच्छा फ्रूट लेकर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से इनको खिलाया जा रहा है। और इसके अलावा भी और दीगर में मजालिस भी हमारी हिफाज़ती उमूर मजलिस है, मेडिकल मजलिस है, रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लग रहा है जो माशाअल्लाह। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, यानी ये इतने कसीर जो इस्लामी भाई हैं इनकी इलाज की सहूलत भी यहाँ मौजूद है, यानी अगर इनको कुछ तबीयत वगैरह नासाज हो जाती है तो उसका भी माशाअल्लाह आपने सेटअप किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह MBBS डॉक्टर हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और इस्लामी भाई का चेकअप करके उनको मेडिसिन भी देते हैं। माशाअल्लाह ये इतने इस्लामी भाई हैं, मस्जिद भी अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना बहुत बड़ा है, तो यहाँ सफाई का क्या आपने कोई शेड्यूल इसका बनाया? माशाअल्लाह हमने सफाई भी देखी है, बड़ी प्यारी माशाअल्लाह सफाई का निज़ाम का सिलसिला भी है, इसके लिए भी कोई अलहदा मजलिस? सफाई के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजलिस बनी हुई है इस्लामी भाइयों की और जो 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सफाई का ख्याल रखते हैं। रात को जो है सहरी से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह सफाई होती है, इसी तरह नमाज फ़जर के बाद भी सफाई होती है, ज़ोहर की नमाज के बाद भी सफाई होती है और इसी तरह अफ्तार से पहले और अफ्तार के बाद भी सफाई होती है। और मुतकिफ़ीन को जिन बर्तनों में खाना पेश किया जा रहा है, जग हैं, गिलास हैं, थाल हैं और डोंगे हैं, जो भी यानी कि यहाँ पर क्रॉकरी इस्तेमाल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह वो हर खाने के बाद धोई जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह जग हैं, गिलास हैं, हर वक्त जो है उनको गर्म पानी से बाकायदा अच्छे अंदाज में वॉश करके अल्हम्दुलिल्लाह इनको सहरी में पेश किया जाए। अच्छा इसी तरह कर सब जैसे मदनी मुज़ाकरा भी अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया रोज़ाना लाइव मदनी मुज़ाकरा इरशाद फरमा रहे होते हैं, सवालात जवाबात का सिलसिला होता है, तो इसमें हमारे मुअत्तकिफ़ीन इस्लामी की शिरकत का क्या निज़ाम है और इसको आप किस अंदाज से मैनेज करते हैं? इस पर कुछ इरशाद फरमाएं। मुअत्तकिफ़ीन इस्लामी भाइयों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी मुज़ाकरे के लिए एक अलग से जगह बनाई गई है और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुअत्तकिफ़ीन इकट्ठे होते हैं और अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत भी करते हैं और अमीर अहले सुन्नत के मलफूज़ात भी अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं, लिखते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। इसमें कुछ आपने कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ सिलसिला कोई रखा है इनकी शिरकत? मुज़ाकरे से पहले अल्हम्दुलिल्लाह चाय का इंतज़ाम होता है अल्हम्दुलिल्लाह और इसी तरह जब सहरी पेश की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह सहरी में भी इस्लामी भाइयों के लिए दही का इंतज़ाम होता है ताकि अच्छे अंदाज में ये सहरी कर सकें और बड़ा अच्छा एक मेन्यू बना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उसी मेन्यू के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह सहर इफ्तार का इंतज़ाम है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जैसे सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन निज़ाम यहाँ पर चलाया जा रहा है। कारी साहब ने भी हमें बताया कि जो मसाला जाते हैं वो यहीं पीसे जाते हैं और मियारी चीज़ों का यहाँ इस्तेमाल करवाया जा रहा है ताकि मुअत्तकिफ़ीन की सेहत का भी खुसूसन ख्याल रखा जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पाकिस्तान भर में एक माह का एहतिकाफ़ की सादतें पाने के लिए आशिकान रसूल मुख्तलिफ़ मदनी मराकज़ में मौजूद हैं, तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में भी एक माह के एहतिकाफ़ के लिए कसीर आशिकान रसूल आए हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अमीर रसूल का डिजिटल ख़जाना है
مدنی چینل کے ذریعے سے مختلف اپلیکیشنیں ہیں یہ ان کے موبائل میں ہم انسٹال کر رہے ہیں جو عاشقان رسول ادھر آ رہے ہیں. بالکل بہت ہی پیاری اپلیکیشن جو آئی ہے اسلام فار ایور, تو وہ ہم بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے وہ فائدہ مند ہے اپلیکیشن. اور اندر پریئر ٹائم جس میں ایک جدت پیدا کی گئی ہے کہ دنیا کے 27 لاکھ مقامات کی قبلہ ڈائریکشن اور نمازوں کی ٹائمنگ اور سحر افطار کا اس میں بتایا گیا ہے. الحمدللہ ہمارے فیضان مدینہ کے تعاون سے ادھر الحمدللہ یہ ہمارا ہیلپ ڈیسک لگا ہوا ہے. جیسے عاشقان رسول موقفین اپنے فارم جمع کراتے ہیں پھر یہاں ان کی انٹرویو ہو رہی ہے, ان کو ہم یہ اپلیکیشنیں ڈاؤن لوڈ کرواتے ہیں. رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم. اعتکاف میں الحمدللہ مختلف شخصیات جو ہیں ان سے بھی ہماری یہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ابھی بھی جو افراد ہمیں ملے ہیں بڑی محبت والے ہیں, بڑی عقیدت سے فیضان مدینہ یہ آئے ہیں. سر آپ کا پورا نام کیا ہے؟ جی میرا نام محمد ریحان خان ہے اور میں ڈاکٹر رشید عباد صاحب کی ہدایت پہ جو سابق گورنر ہیں اسپیشلی ان کے کوآرڈینیٹر ہوں اور یوتھ ونگ کا آرگنائزر ہوں. تو ہم یہاں تشریف لائیں کیونکہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ہدایت کے مطابق جو ہے حضرت صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ وہ جو اتنے سالوں سے ایک بہت پازیٹیو اور مثبت کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اسپیشلی میں یوتھ کا چیئرمین ہوں تو یوتھ کو جو ہے وہ بہراور روی سے بچانے کا ایک بہت بڑا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور ایک بہت پازیٹیو جو ہے وہ پورے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں عالم اسلام میں وہ بہت پازیٹیو کام کر رہے ہیں. اس کو ہم نے سراہنا تھا اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے شکریہ ادا کرنا تھا اور اسپیشلی جو ہے رمضان کی برکات کے حساب سے دعا میں بھی شریک ہونا تھا. آپ ابھی پہنچے ہیں, آپ کی خود کی کیا کیفیت ہے یہاں دعا میں آپ شامل ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں لوگ ابھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یہاں؟ جی ماشاءاللہ سے بہت روحانی محفل ہے اور ہمیں بہت اچھا پازیٹیو فیل ہو رہا ہے. اور اسپیشلی یہ کہ 10 رمضان کو جیسے مدنی چینل کے جو ہے وہ سالگرہ ہے تو 70ویں سالگرہ سر جی تو یہ ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اور ہماری طرف سے میرے تمام CEC کی طرف سے جو ہے وہ پیشگی مبارکباد. اور حضرت صاحب کو جو ہے 26 تاریخ کو ان کی جو ہے وہ سالگرہ ہے تو ان کی بھی جو ہے یوم پیدائش پہ ان کو بھی پیشگی مبارکباد دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے. اور ماشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح صحت و ہمت کے ساتھ اور یہ ایمانی جو محفل ہے سجائی بھی انہوں نے دنیا بھر میں اس کو کنٹینیو رکھے گی. رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. یقیناً آپ کو بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا, بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا. کل آپ کو نئی اپڈیٹ مزید دی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم.